हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 11 वीडियो है। ठीक है। और हम लोगों ने ऑलरेडी इन थ्योरी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। दो आरसी एग्जाम में आते हैं जिसमें हम लोगों ने एक आरसी कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग लास्ट ये आरसी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे 150 क्वेश्चंस मतलब कि जो कॉमर्स के क्वेश्चंस है पेपर 2 के वो कंप्लीट हो जाएंगे थ्योरी पोर्शन के, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह जाएंगे उसको अलग से वीडियो अपलोड करके आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है। तो अभी अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत नॉलेजेबल लगती हो, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके आप मुझसे कोई भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ। तो ये एक आरसी है। सबसे पहले तो हम लोग आरसी समझेंगे कि ये किस टॉपिक पे, मतलब किस टॉपिक पे ये आरसी दिया गया है। ठीक है। इसका क्या मेन टॉपिक है ये। ठीक है। तो वेट अ सेकेंड। हाँ। तो इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो बार अच्छे से रीड करने से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किस टॉपिक पे है। ठीक। हाँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि over $350 billion of private capital has been deployed over the last decade, which has propelled more than 500 enterprises। मतलब कि यहाँ पे बिलियन प्राइवेट कैपिटल की बात की जा रही है। ठीक है। कितने 350 बिलियन कैपिटल की बात की जा रही है। हैज बीन डिप्लॉयड ओवर द लास्ट डिकेड मतलब 10 सालों में। which has propelled more than 5,000 enterprises. This new business are anchored in an innovative business model combining the full potential of technology, facilitating every Indian to fulfill their aspirations। ठीक है। The big shift in the last decade में अब big shift क्या हुआ है कि reimagination of India as an addressable market of 300 million household, a massive shift from only 20 million household in tier 1 cities earlier. This has been propelled by the strong partnership between entrepreneurs and the PE upon VC ecosystem. The share of FDI funneled into PE upon VC has surged to 50% 60%, up from 20 to 30% 2 decades back। ठीक है। तो बिसाइड्स मतलब इसके अलावा ट्रिमेंडियस फोकस जो है हमारा वैल्यू क्रिएशन पे है। The PE upon VC industry has brought about multi-dimensional progress in the economy. The principle of responsible investing that this industry is committed to have enabled the building of a more equitable, exclusive economy, and one that has earned the trust of large global investors as an attractive investment decision। ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, कंपनी से रिलेटेड क्या शिफ्ट हुआ है। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएशन की भी बात की गई है। PE upon VC ecosystem sparked a re-announced powering young minds to take a bold leap। ठीक है। यहाँ पे entrepreneurs की बात भी की गई है। This lead to a change in mindset where entrepreneurship is a new accepted livelihood। मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ये भी रोजगार का अच्छा तरीका है। Indeed a proud way of life। Today startups and new business are celebrated and many are giving up established careers to follow their heart, with families standing as a stalwart supporters of entrepreneurship. The proportionality of the risk and reward has been inversed, for forging a harmonious relationship between uncertainty and achievement। Stories at home and those that went global are a testament to the power of entrepreneurship between the capital provider and entrepreneurs, transforming a large democracy to be self-reliant and elevating over a billion people to a new world of greater aspirations and confidence। This revolution has been largely possible because of Bo's trust towards attracting capital, the framework of Alternative Investment Fund, Gift City IFSC Startup India program, and budget allocation coupled with progressive amendments such as GST and India's stake have made India an attractive destination for investment। ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर, अब आपको इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि ये किस चीज पे आरसी दिया गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड। अभी आपने ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था, इसमें क्या बताया है, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, लिवलीहुड के लिए एंटरप्रेन्योरशिप था ना, कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ लिवलीहुड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम लोगों ने इसका आंसर आरसी में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 147 क्या बता रहा है। Which of the following, according to the passage, have made India an attractive destination for investment? ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इंडिया, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स फैसिलिटेशन। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, वो हमारे आरसी में दिया था। ठीक है, आरसी में यहाँ पे दिया गया था कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, यही इसी पैराग्राफ में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फैसिलिटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग टू विच private equity and venture capital industry is committed have resulted in which of the following outcomes of the Indian economy? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इकोनॉमी और अर्न द ट्रस्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये थर्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन को समझने, या आपको कुछ और लग रहा हो, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 149 में क्या कह रहा है, यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम हैज स्पार्क्ड अ रिनायंस empowering young minds to take a bold leap। ये हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी, करेक्ट है। Today, startups and new business are celebrated and many are given up their established career to follow their heart with families standing at a stalwart supporters। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, both A are true and R are the correct explanation for this question। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने इस लाइन को भी पढ़ा था कि अभी रिसेंटली इन द रिसेंट ईयर्स द फोकस ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इंडिया हैज बीन ऑन वैल्यू क्रिएशन। हमने अंडरलाइन भी किया था आरसी में, वैल्यू क्रिएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। अब कल जो पार्ट लेके आएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का होगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे के ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे ही करते चले जब तक हमारे एग्जाम्स की डेट नहीं आ जाती है, और जब तक हमारा एग्जाम हो जाता है, हम लोग इतने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। जिससे हम लोगों को पैटर्न पता चलेगा और हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और मे भी मोस्टली टॉपिक्स या क्वेश्चंस वहाँ एग्जाम में आ भी जाए, तो जीआरएफ और क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और एग्जाम अच्छा होगा, और सबका नेट और जीआरएफ जिसको भी क्लियर करना है वो क्लियर कर लेंगे, जो भी एस्पिरेंट इसके हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।